wonderfully qualified, and also did his electrical engineering from NIT Bhopal in 2018. And yes, as brilliantly intellectually, he's a chess player, national level chess player. And after that, he got placement in two companies. One is Vedanta, and another one is Reliance Infrastructure, where he worked as assistant manager for more than 2 years. And then he came in contact with ISKCON in 2007. Then he joined ISKCON, full-time celibate, in 2011, having such a qualification and dedicating his life for sharing this Vedic wisdom to all of us. And yes, he is now serving as a co-president of ISKCON Ujjain since October 2016. And for knowing more about Prabhuji, we can watch the YouTube video, which is viewed by more than 2 lakh people. Maa Baap Ya Bhagwan, the title of video is. And also, Prabhuji is sharing this Vedic wisdom in so many administrative places like district level officers, so many police departments, and also to the forest officers, and in many jail programs. And fortunately, we all are here, and Prabhuji is here with all of us. So let's proceed, and I would like to hand over this session to Prabhuji. Kindly, bestow the shower of the sweetness from the Ramayana and the pastimes of Hanumanji in the Ramayana. Hare Krishna. So we can write one time Hari Bol for Prabhuji in the chat box. Hari Bol, the sign of readiness with a smiling face. Okay, so Prabhu, till what time should I speak, and do we have question answer session, or how it will go? Prabhuji, I think we have our session till 9 p.m. So I think last 10 to 15 minutes we can leave for question and answers. Okay, yeah. And the medium, the language is English or Hindi or mix or what? How you? I think so many Haribols are coming in English, and so many Haribols are coming in Hindi, so we can use both the languages. Okay, good. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swamadantikam Namo Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gaurvani Picharane Nirushesha Shrivadi Vashnate Starane Hey Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namuntate Tatta Kanchan Garangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Satadevi Pranamami Hari Priye Vansakal Taru Vasakapa Sindhu Mevsya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Govinda Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूँ कि अगले 40 मिनट तक जब मैं बोलूंगा तो आपको बोर नहीं करूंगा। हनुमान जी से मैं बहुत 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 ज्यादा ही इंस्पायर्ड था हूँ और आगे तक रहूंगा, कि हनुमान जी के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि एक साधक के अंदर, जो कि एक भक्त के अंदर होनी चाहिए। कि जिस समय मैं ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग फैमिली मेंबर्स ने, रिलेटिव्स ने प्रश्न किया, कह रहे आप कहाँ जा रहे हो, इस्कॉन जा रहे हो, इस्कॉन में तो राधा कृष्ण है, तो कृष्ण ने तो स्वयं ही विवाह किया था, एक दो से नहीं 16,108 रानियों से विवाह किया था, और रामचंद्र ने भी विवाह किया था, और जनक महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने, दशरथ महाराज ने, सभी ने तो विवाह किया, तो फिर आप ये किसके पद चिन्हों का पालन कर रहे हो, आप बेसिकली क्यों विवाह नहीं कर रहे हो। तो मैं भी थोड़ा मजाक में आंसर दिया करता था कि हम थोड़े हनुमान जी से ज्यादा इंस्पायर्ड थे इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में लैंड अप किए। तो वो भी हंसते थे, मैं भी हंसता था। बट पॉइंट ये है कि हनुमान जी का एक कैरेक्टर इतना शुद्ध है, और जब भी हम किसी शुद्ध व्यक्ति के बारे में, की प्यूरिफाइड पर्सनालिटीज के बारे में
हम जब चर्चा करते हैं तो हमारा भी प्योरिटी लेवल जो है वो ऊपर उठ जाता है। हम सभी एक अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी इंडेक्स फॉलो करते हैं, परंतु जब हम इस प्रकार से चर्चा करते हैं, सुनते हैं, भगवान के भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, तो हम भी एक स्तर ऊपर उठ जाते हैं। तो और एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया कि किसी से कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्, एज वन सरेंडर्स टू मी आई रेसिप्रोकेट विद हिम अकॉर्डिंगली। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं उससे उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूँ। तो देखिए, अभी हम देखते हैं कि हनुमान जी ने किस प्रकार से भगवान रामचंद्र का दिल जीत लिया। हाँ, और पूरा फुल्ली सरेंडर्ड थे। तो आज हम देख सकते हैं किस प्रकार से हर एक मंदिर जहाँ पर रामचंद्र भगवान का विग्रह विराजमान है, साथ में हनुमान जी का भी है। तो जब हनुमान ने 100% राम को दिया, तो राम ने किस प्रकार से रेसिप्रोकेट किया, उन्होंने जो है अपने साथ में ही हनुमान जी को जगह दी। मैं किसी भी मंदिर में गया तो मैंने देखा सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान चारों साथ में ही मिले मुझे। तो दैट इज द ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विसेज। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने 69 ईयर्स की एज में 2 हार्ट अटैक होने के बाद भी अमेरिका जाकर के कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में सर्च नहीं किया, बल्कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार कैसे हो इसके बारे में सोचा। तो पूरा आखिरी के 10 साल हम देख सकते हैं किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने अपने आप को प्रचार आंदोलन में अपने आप को संलग्न किया। तो आज जहाँ जहाँ इस्कॉन के सेंटर्स हैं, वहां पे श्रील प्रभुपाद की भी डीटी विराजमान है। इस्कॉन के आज 700 सेंटर हैं, तो 700 विग्रह इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के भी हैं। आगे आज से 1000 साल बाद अगर 7000 इस्कॉन के सेंटर्स आएंगे, तो उन 7000 सेंटर्स में श्रील प्रभुपाद का विग्रह भी रहेगा। सो दैट इज द ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विसेज। जब हम कृष्ण के लिए कुछ करने के लिए सोचते हैं, तो हमको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हमारी कल्पना से परे बेसिकली भगवान जाकर के हमारे साथ में रेसिप्रोकेट करने वाले हैं, जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा। What is the beauty of devotee, the pastime of the devotees of Lord? It floods our heart with happiness and excitement. We feel of taking part in great adventure. Pure transformation of heart takes place, and it's an absorbing entertainment. तो ये सारी चीजें कब होती हैं? जब हम भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुछ एक क्वालिटीज, कुछ एक पास टाइम्स जो मैं सोचा थोड़े से समय में हम डिस्कस करके अपना और अप्रिशिएशन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हर एक लेक्चर के बाद में हमको ये देखना चाहिए कि हम इस लेक्चर से लेकर के अप्लाई क्या करने वाले हैं अपने जीवन में। श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, वंदनम। श्रवणम मीन्स हमने सुना, मननम मीन्स उसको कंटेम्पलेट किया, निधिध्यासनम मीन्स उसको अपने जीवन में अप्लाई किया, वंदनम मीन्स उसका प्रचार किया। ये चार एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। तो निधिध्यासन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन, जो भी सुना है, जो भी कुछ उससे सीखा है, उसको अपने जीवन में, हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से लगाने वाले हैं, से हमारे अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इल्यूजन और इग्नोरेंस कम होगा, और हम we will be able to think clearly, see clearly, speak clearly। हमारी एक क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो उसका इंडेक्स बढ़ जाएगा। हम बहुत बहुत स्पष्ट तरीके से देख पाएंगे, सोच पाएंगे, बोल पाएंगे, सब कुछ स्पष्टता के साथ कर पाएंगे। जितना ज्यादा हमारे अंदर से इग्नोरेंस और इल्यूजन कम हो जाएगा। तो जब वनवास रामचंद्र भगवान को हो चुका था, और उसके बाद में ऑलरेडी जिस समय सीता जी का हरण हो चुका था रावण के द्वारा, उस समय जब सीता जी की खोज में राम और लक्ष्मण निकले हुए थे, तो जाकर के जब वो वन में जा रहे थे, तब वहां जाकर के हनुमान जी की रामचंद्र से भेंट हुई। रामचंद्र भगवान तो पहचान लिए हनुमान को, पर उस समय हनुमान जो कि सुग्रीव का आदेश पालन करते हुए उनके बारे में इन वनचारियों के बारे में पता लगाने के लिए आए थे। उस समय तुरंत एक बार में हनुमान जो है भगवान रामचंद्र को नहीं पहचान पाए।
और जिस समय पहचाना अच्छा ये हमारे प्रभु श्री राम है, उस समय उनके अंदर डिवोशन, द वेव्स ऑफ डिवोशन स्टार्ट्स फ्लोइंग इन उनके हृदय में, जो भक्ति की जो लहर है वो उमड़ उमड़ पड़ी, हाँ हिंदी में कहेंगे उमड़ पड़ी, बिकॉज ही वॉज अ इटर्नल डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। हम सभी भगवान के भक्ति हैं, परंतु हमारा हमारा जो लेवल ऑफ इग्नोरेंस है वो, मतलब जिस इग्नोरेंस के लिए ने ढक ढक करके रखा है हमारे भक्तिमय एस्पेक्ट को, उसको हमको हटाने के लिए, मिटाने के लिए साधना भक्ति की अग्नि की आवश्यकता होती है। तो वहां से शुरुआत होती है, और जिस समय पता लगता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है, रावण कोई कोई तो है जो इनको सीता जी को लेकर के चला गया है। 4 टीमों का विभाजन होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं में जो है एक एक नेता बना दिए जाते हैं और उनको भेज दिया जाता है। और बाद में इस समय हनुमान जी जिस दक्षिण वाली टीम में रहते हैं, तीनों तीनों तीन जो उनके जो टीम्स थी, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट वाली, तीनों को असफलता मिलती है। अब केवल साउथ वाली टीम जिसमें हनुमान जी स्वयं थे, उनके ऊपर पूरी उम्मीदें टिकी हुई हैं। और अभी जिस समय ये लोग जटायु के भाई जटायु के भाई से मिलते हैं, और वो जब इनको बताते संपत्ति संपत्ति, तो वो जब बताता है कि किस प्रकार से जो रावण है, लंकापति रावण है, वो सीता जी को लेकर के गया है, तो वो जाकर के वहां पर जामवंत जो है वहां पर फिर प्रश्न पूछते हैं कि कौन ऐसा योद्धा है जो कि समुद्र को पार करके लंका तक जा सकता है। तो वहां पर अलग अलग योद्धा अलग अलग अपनी शक्ति के बारे में सोचते हैं, और उस समय हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं, पर क्योंकि हाँ वो विनम्र भी थे और उनको एक श्राप भी लगा हुआ था कि वो अपनी शक्तियों का एहसास तब कर पाएंगे जिससे मैं उनको कोई उनकी शक्तियों के बारे में अवगत कराएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे अंदर भी असीमित क्षमताएं हैं, परंतु हमको भी गुरु की आवश्यकता होती है जो कि हमारी शक्तियों को हमको याद दिलाते हैं। देखिए हम सभी के अंदर हम कन्वर्सेशन है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, हम हमेशा वैसे नहीं थे जैसे आज। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी क्योंकि मैं डीटीएस की सर्विसेज के लिए जाता हूँ तो सुबह 3:15 बजे उठता हूँ, तो क्या पहले से ही 3:15 बजे उठता था? नहीं, पहले तो मैं 8 बजे उठता था। जब मैं हॉस्टल में था तो 8 बजे उठता था। तो 8 बजे से 8 बजे का ये जो जो टाइम था तो बहुत लंबे समय तक पालन किया। 8 बजे से लेकर 3:15 बजे तक की जर्नी कैसे 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 संभव हुई? हाँ, क्योंकि जो शिक्षा गुरु थे, हाँ मेरे कुछ जो शिक्षा गुरु थे, उन्होंने बीच बीच में अवगत कराते रहा कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, तुमको उठना चाहिए, सुबह उठने से लाभ होगा, सतोगुण रहेगा, यू विल बी एबल टू थिंक क्लियरली। हाँ, सतोगुण जो है वो अपने आप में सुख प्रदान करने वाला गुण है। तो इस माध्यम से अभी बिना किसी समस्या के 3:15 बजे जो है उठ जाते हैं। 3:45 बजे ऑल्टर में रिपोर्ट करना रहता है डीटीज की सेवा के लिए। तो एक अलग से एक जॉय रहता है, एक उत्साह रहता है। तो हमको हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, परंतु उन क्षमताओं से हम कभी खुद ही अवगत नहीं होते, तो हमको गुरु की आवश्यकता रहती है जो हमको अवगत करा। तो यहाँ पर जो जामवंत थे उन्होंने एक गुरु का काम किया, जिन्होंने हनुमान की अंदर जो अद्भुत क्षमताएं थी उनका प्रकाश किया। हनुमान को कहा कि अभी तुम भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए अपने गुणों को जाहिर करना है, उनको गुणों को उपयोग करना है। और उस समय जब भगवान रामचंद्र की सेवा किया है तो हनुमान जी जय श्री राम बोलते हुए अपने आकार को बड़ा कर लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। क्या पॉइंट है? देखिए ज्यादातर लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे के, किसी कुछ सफलताएं भी मिल जाती हैं तो उन सफलताओं को भी जनरली हम देखते हैं कि क्रिटिसाइज किया जाता है। अप्रिशिएशन कम रहता है, क्रिटिसिज्म ज्यादा रहता है। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना जो है अगर ऊपर उठती है तो वो क्रिटिसिज्म के जोन से आता है ऊपर उठ करके एक्नॉलेजमेंट के जोन में। अगर किसी ने हमारे हमारे बारे में कुछ अच्छा किया या कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसकी गुड एक्टिविटीज को एक्नॉलेज करते हैं। कॉन्शियसनेस लो है तो क्रिटिसाइज करेंगे, कॉन्शियसनेस और अच्छी है तो हम उसको एक्नॉलेज करेंगे। करेक्ट। और ज्यादा कॉन्शियसनेस जब ऊपर उठती है तो क्या होता है, हम अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों के अच्छे वर्क को अप्रिशिएट, सराहना करना शुरू कर देते हैं।
और ज्यादा कॉन्शियसनेस ऊपर उठती है तो क्या करते हैं, वी हार्डली ग्लोरीफाई, वी आर थैंकफुल टुवर्ड्स हिम, वी हार्डली ग्लोरीफाई हिम। और ज्यादा कॉन्शियसनेस ऊपर उठती है तो क्या होती है, हम उसकी सक्सेस को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि ये व्यक्ति इतना महान है, इतना अच्छा है, ब्रॉडकास्टिंग द ग्लोरीज। और ज्यादा कॉन्शियसनेस ऊपर उठती है तो हम जो है दूसरों की सफलताओं के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। और ज्यादा कॉन्शियसनेस ऊपर उठती है तो हम दूसरों की सफलता के लिए सैक्रिफाइस करने तैयार हो जाते हैं। और बोलेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ये जो बंदर थे भगवान रामचंद्र सेवा में, ये है एग्जाम्पल। जिस समय हनुमान जी लंका की तरफ जाने के लिए तत्पर थे, उस समय बंदरों ने क्या कहा, बंदरों ने क्या, हनुमान जी हमारे बेस्ट विशेष आर विथ यू, साथ ही साथ में हमारी खाली प्रार्थनाएं आपके साथ नहीं है, हम आपकी सफलता के लिए इतने उत्साही हैं कि हम एक पांव पे खड़े होकर ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, तपस्या करेंगे आपकी सफलता के लिए। अभी आप बंदरों का स्वभाव जानते हो, बंदर तो एक मिनट भी शांत नहीं रह सकता। कभी वृंदावन गए होंगे, आपने देखा होगा बंदर कैसे एक डगाल से दूसरे डगाल तक जाते रहते हैं। मेरा एक दिन बंदर आया, एक टेका यहाँ कंधे पे रखा और चश्मा उतार उतार करके ले गया। अभी 2 साल पहले जब मैं वृंदावन गया तो मुझे पता भी नहीं लग पाया कब उसने मेरा चश्मा उतार दिया। उसके बाद फिर कहा कि इसको फ्रूटी पिलानी पड़ेगी तो जाकर के आपका चश्मा देगा। तो फटाक से फ्रूटी लिया और फ्रूटी फिर उसकी तरफ दिया तो फिर उसने भी चश्मा फेंका, फेंका था तो उसका ग्लास तो ठीक थे पर फ्रेम टूट गया था। फिर पास में शॉप थी तो सेम ग्लासेस पे नया फ्रेम बनवा दिया था, नया चश्मा ही हो गया था आई थिंक। तो बंदर इतनी चपल रहते, शांति रहते। यहाँ पे जो बंदर है ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हनुमान जी हम आपकी सफलता के लिए एक टांग पे भूखे प्यासे खड़े होकर के हम तपस्या करेंगे। क्या हमारे जीवन में है ऐसे मित्र जो हमारी हमारी सफलता के लिए इतना कष्ट लेने के लिए उतारो हो? क्या हमारे जीवन में है ऐसे फ्रेंड्स मित्र जो हमारी हमारी सफलता के लिए प्रार्थना करते हो? So this requires an extremely fair, honest, and great character, which Lord Hanuman had. जिस कारण से एक बोलते हैं ना, जैसे अगर आपको हनुमान जैसा सेवक चाहिए तो आपको राम जैसा शुद्ध भी तो होना पड़ेगा। हनुमान जैसा क्वालिटी सर्वेंट रावण जैसे व्यक्ति की सेवा सेवा कर सकता है क्या? संभव ही नहीं है। हाँ? तो if one wish to have the servant like Hanuman, then one also need to be like Lord Ram. क्योंकि जैसे शील प्रभुपाद को क्यों इतने सारे इतने महान महान भक्तों ने शरणागत हुए, क्यों? क्योंकि शील प्रभुपाद का कैरेक्टर भी तो उतना हाई था। अब शील प्रभुपाद को तो शरणागत होने के लिए शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसा कोई कैरेक्टर चाहिए। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को तो श्री जगन्नाथ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जैसा कोई शुद्ध भक्त चाहिए। तो दैट वे द थिंग फॉलोज। तो इसलिए हमको हमेशा अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट पे कार्य करना चाहिए। लोगों को लगता है the wealthier we are, the happier we are, the beautiful we are, the happier we are, इसलिए इतने कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। लोगों को लगता है the intelligent we are, the happier we are, the knowledgeable we are, the happier we are, हाँ, the famous we are, the happier we are। No 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 no, scripture says the purer you are, the happier you are। आप जितने शुद्ध होंगे आप उतने प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता चाहते हैं, कोई बुराई नहीं प्रसन्न होने में, परंतु हमारा जो है खोज सही दिशा में होनी चाहिए। करेक्ट। तो इसी प्रकार से there's no loss in searching happiness but the way and means should be correct। तो यहाँ पर हनुमान जी का एक सॉलिड कैरेक्टर हमको दिखाई देता है। बाद में इसके बाद जो हनुमान जी अपनी जर्नी चालू करते हैं तो मैनक पर्वत को लगता है कि अरे ये तो भगवान के भक्त हैं, इनको थोड़ा विराम, थोड़ा आराम के लिए हमको आमंत्रित करना चाहिए। तो बोलते हैं कि हनुमान आप तो थक गए होंगे, आज आपकी जर्नी में थोड़ा देर विश्राम कर लीजिए, थोड़ी मुझे सेवा का मौका दे दीजिए। तो अभी हनुमान जी तो जानते हैं समय कम है अपन अब हमारे पास में, रामचंद्र भगवान वैसे ही विचलित है, सीता जी नहीं है उनके पास में। तो सोचते हैं कि नहीं ये समय जो है ये इस प्रकार से आराम का नहीं है, पर एट द सेम टाइम इनको बुरा ना लगे तो इसलिए वो मैनक पर्वत की चोटी को टच करते हैं और टच करके निकल जाते हैं। तो इससे भी बहुत सारी शिक्षाएं हमको मिलती है। जैसे आप जैसे आप किसी के घर में गए और आपको कोई भक्त को प्रसाद ऑफर कर रहा है, आपका पेट भले चाहे भरा हुआ है और उसके बाद भी थोड़ा सा उनके सम्मान के लिए हमको ले लेना चाहिए। करेक्ट। और सेकेंडली अगर हम बहुत बिजी हैं, हाँ, तो उसके बाद भी बिजीनेस के टाइम पे भी हमको रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए, हमको एटिकेट्स को हमेशा कंसिडर करते हुए चलना चाहिए। तो जिस प्रकार से हनुमान जी ने एक एटिकेट दिखाया कि ही रिस्पेक्टेड हिज ओन टाइम
At the same time, he respected the emotions exhibited by manic mountain. Correct? तो ये बहुत important है. Sensitivity while dealing, very very important. आज इतने सारे relationships में problems क्यों है? Because people are not sensitive about others. People are not empathy नहीं है. दूसरे के नजरिए से नहीं सोच पाते, इस कारण से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बनी रहती है. के बाद फिर आगे जाते हैं तो एक सुरसा करके राक्षसी सामने खड़ी हो जाती है, मुंह फाड़ करके बोलती है कि तुम कौन हो, तुम जो भी हो, तुम्हें मेरे मुख के अंदर से प्रवेश करना पड़ेगा. हनुमान जी कहते हैं अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मिशन में हूँ, भगवान रामचंद्र के मिशन में हूँ, लौटते में आकर के तुम्हारा लंच बॉक्स बन के तैयार, अभी जाने दो. वो कहते नहीं, मुझे ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त है, तुमको मेरे मुख के अंदर से प्रवेश करना ही पड़ेगा. हनुमान जी सोचते अच्छा, हमको चैलेंज. हनुमान जी अपना साइज बढ़ा देते हैं, 10 योजन का कर देते हैं. एक योजन होता है 8 मील के बराबर, 10 योजन हो गया 80 मील के बराबर. तो इतना बड़ा साइज कर देते हैं. सुरसा को भी वरदान प्राप्त था, वो भी अपना साइज 20, जो मुंह का साइज है वो 20 योजन के बराबर ऊपर कर देती है, फैला देती है. हनुमान जी 20 योजन की साइज अपना बड़ा कर देती है कि तुम्हारे मुख के साइज से बड़ा मैं अपना साइज कर दूंगा, तो फिर बताओ कैसे कंडीशन फुलफिल होगी. सुरसा भी अपना मुख 40 योजन कर देती है. हनुमान जी 50, सुरसा का मुख 60, हनुमान जी का साइज 60, 70, 80, 90, जब फाइनली 100 योजन का जब मुख खोल देती है सुरसा, तो हनुमान जी बोलते हैं कि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है. हनुमान जी को लगता है कि इतना समय नहीं है मेरे पास में, ये भी इसके पास भी असीमित क्षमताएं समझ में आ रही है साइज बढ़ाने की, और मेरे पास भी कोई कमी नहीं है, परंतु समय नहीं है इतना मेरे पास में. तुरंत वो दिमाग लगाते हैं. हाँ, मैच्योरिटी मीन्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस. समस्याएं बड़ी हो सकती है पर उसका समाधान आपके पास है तो आप मैच्योर हैं. समस्याओं से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यानी मैच्योरिटी की कमी है. भगवान जी ने तुरंत अपना साइज एकदम एक मक्खी के समान एकदम फटाक से किया, एकदम रॉकेट की स्पीड से सुरसा के मुख के अंदर प्रवेश किया और बाहर आगे बोला कंडीशन फुलफिल, कंडीशन फुलफिल, अभी आप बस जाने दो. तुरंत सुरसा ने भी एक सुंदर देवी का रूप धारण किया, कहा हे हनुमान, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से अति प्रभावित हूँ और तुमको मैं वरदान देती हूँ कि तुम अपने मिशन में सक्सेसफुल रहोगी. तो वो एक राक्षसी नहीं थी बल्कि देवी थी, जो कि हनुमान का इंटेलिजेंस टेस्ट लेवी थी, जिसमें हनुमान पास हुए. कई बार हमारे जीवन में भी भगवान इंटेलिजेंस टेस्ट रखते हैं. देखते हैं कि हम कठिन समस्याओं को, कठिन परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कोसते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, या बुद्धि लगा करके भगवान से बुद्धि मांग करके उन समस्याओं को सुलझाते हैं. पतंग आप लोग ने उड़ाई होगी, गुच्छे भी धागे में हुए होंगे. दो तरीके होते हैं, या तो थोड़ा सा पेशेंस धैर्य रखते हो, गुच्छे को सुलझा लो और अपनी डोरी हमेशा सही सलामत रखो. दूसरा होता है कि अगर आपने पेशेंस कम है तो फटाक से तोड़ा और गठान लगाई और आपके धागा जो है वो गठान वाला हो जाता है, बाद में उससे उसकी वजह से और ज्यादा गुच्छे होते हैं. तो वी नीड टू हैव पेशेंस इन अवर लाइफ, अगर हमको जीवन में स्मूथली आगे बढ़ना है तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं ये मटेरियलिस्टिक सक्सेस में भी काम आती है, स्पिरिचुअल सक्सेस में भी काम आती है. क्वालिटीज तो क्वालिटीज होती हैं, करेक्ट. तो ऐसा नहीं है कि बेसिकली ये स्क्रिप्चर्स आर जस्ट लाइक सम स्टोरीज फॉर एंटरटेनमेंट. ये एड्यूटेनमेंट है, मनोरंजन नहीं करना, मनोरंजन करना है. मनोरंजन में मनोरंजन भी है और ज्ञान भी छुपा हुआ है. एंटरटेनमेंट में केवल एंटरटेनमेंट है, एड्यूटेनमेंट में एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन दोनों छुपा हुआ है. That's why we need to go for edutainment. तो और यहाँ पे तो डिवोशनल कंपोनेंट भी है, हमारा डिवोशन कंपोनेंट भी नरिश होता है ना. जैसे देखिए फूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं खाने के, कौन कौन से होते हैं. एक होता है टेस्ट कंपोनेंट, एक होता है न्यूट्रिशियस कंपोनेंट, और एक होता है स्पिरिचुअल कंपोनेंट. ज्यादातर लोग तो एक ही कंपोनेंट को हिट कर पाते हैं, वो है टेस्ट कंपोनेंट. बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं तो 2 कंपोनेंट को हिट कर पाते हैं, टेस्ट प्लस न्यूट्रिशन. और बहुत ही बिरले भक्त होते हैं जो कि भगवान को ऑफर करते हैं न्यूट्रिशियस चीजें, उसके बाद फिर उसको ग्रहण करते हैं, तो तीनों के तीनों कंपोनेंट को हिट कर लेते हैं. Correct? तो कृष्ण भक्त बड़ो चतुर. द डिवोटी ऑफ लॉर्ड इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. तो हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में उनको एक और राक्षसी मिलती है जो कि उनकी परछाई को ही पकड़ करके सीधा मुख के अंदर ले लेती है. तभी हनुमान जी समझ जाते हैं कि इसका तो वध ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो बातचीत करने का कुछ मौका ही नहीं दिया, सीधा ही अंदर ले लिया. हनुमान जी उसका वध करके बाहर निकल आते हैं. के बाद में उनको जो रावण के द्वार पे भी एक राक्षसी मिलती है जो कि द्वारपाल का काम करती रहती है. तो वो हनुमान जी को आइडेंटिफाई कर लेती है, देख लेती है, हालांकि उन्होंने काफी अपना छोटा साइज किया हुआ तो उसके बाद भी इसको आइडेंटिफाई कर लेती है, कर लेती है.
तो हनुमान जी को फिर रोकती है, तो हनुमान जी उसे छुटकारा पाने के लिए उसको एक घूसा जड़ते हैं। जैसे उसको घूसा जड़ते हैं तो उसका एक दांत टूट जाता है, और उसको ब्रह्मा जी की वाणी याद आती है कि जिस जब तुम्हारा जब 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 किसी के प्रहार से तुम्हारा दांत टूटेगा, उस समय जो है लंका का संहार हो जाएगा। उस समय से समझ लेना कि लंका का संहार होना शुरू हो जाएगा। उसको भी समझ में आता है कि अच्छा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और अभी लंका का भी संहार होने वाला है। तो फाइनली हनुमान जी जो है अशोक वाटिका में प्रवेश कर जाते हैं। अशोक वाटिका में प्रवेश करके वो देखते हैं कि अरे नहीं, पहले तो वो बहुत ढूंढते हैं, सीता जी को बहुत ढूंढते हैं। और ढूंढने ढूंढने पे समझ में नहीं आता कहाँ पर है। अब सीता जी का डिस्क्रिप्शन तो बताया था भगवान रामचंद्र ने कैसी दिखती है क्या है, परंतु इस प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन इनको मिल ही नहीं रहा था। फाइनली जब ये रावण की इनर चैम्बर्स में जाते हैं, जहाँ पे रावण जो है वो सोया हुआ था, भोग करने के बाद में अपनी सभी पत्नियों के साथ भोग करने के बाद में सोया हुआ था, तो वहां पर जाकर के वो देखते हैं कि बहुत ही अद्भुत सुंदरी जो है वहां पर लेटी हुई है, जो कि मंदोदरी थी असली में। तो जो जो जिस प्रकार की सुंदरता का डिस्क्रिप्शन भगवान रामचंद्र ने दिया था, उस प्रकार की सुंदरता से मिलता जुलता डिस्क्रिप्शन जो है मंदोदरी का समझ में आ रहा था उनको। एक समय के लिए हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि फाइनली मुझे सीता मिल गई है, और अपनी बच्ची को चूमते हैं और खुश हो जाते हैं। तो फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं, सीता तो महासती थी। हाँ, ये तो संभव ही नहीं है। सीता जो है किसी अन्य पुरुष के साथ में लेटने से पहले तो उनके प्राण ही निकल जाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। तो फिर वो फिर थोड़ा निराश हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर हनुमान जी अपनी सर्च फिर से जारी रखते हैं। और फिर ढूंढते हैं, खूब ढूंढते हैं, पर कुछ नहीं मिलता, बड़े निराश होने लगते हैं। उनको लगता है कि अरे, मैं क्या खबर लेकर के जाऊंगा, ये खबर लेकर के जाऊंगा कि फाइनली मुझे सीता जी नहीं मिली है, रामचंद्र जी क्या सोचेंगे, मेरे मास्टर सुग्रीव क्या सोचेंगे, इस प्रकार उदास ही थे। तो उस समय देखते हैं कि कुछ नगाड़े वगैरह बजने शुरू हो जाते हैं, और कुछ राक्षस लोग कुछ हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं उस समय, क्योंकि रावण आना शुरू कर देता है अशोक वाटिका में। वहां पर देखते हैं कि अच्छा कौन आ रहा है, तो बोलते हैं अच्छा रावण आ रहा है। तो रावण आकर के जब सीता जी से मिलता है और सीता जी को बहुत डराने धमकाने का प्रयास करता है कि तुम्हारे पास 1 साल है सीता, अगर चाहो तो तुम मुझे स्वीकार करो, और नहीं तो मैं तुमको अपने हलवाइयों को बोल करके तुम्हारा मांस जो है वो खा जाऊंगा। आई विल ईट यू बेसिकली। तो तो इस प्रकार से सीता जी जो है वो थोड़ा धीरे धीरे रोना शुरू कर देती है। और जब वो रावण चला जाता है, तो सीता जी की आंखों में आंसू देख करके हनुमान जी को भी बहुत बहुत आघात पहुंचता है, और ही ऑल्सो स्टार्ट्स क्राइंग। उनको उनकी भी आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। बाद में अभी तो बहुत छोटा सा साइज रखे हुए थे, और छोटा सा साइज तो रखे थे, परंतु ये राम जी को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं, और उससे सीता जी का ध्यान जो है आकर्षित करते हैं, और फाइनली सीता जी के सामने जाकर के बोलते हैं कि मैं जो हूँ, मैं हनुमान हूँ। परंतु सीता को लगता है कि मालूम नहीं है, कोई नया रूप बदल करके तो रावण नहीं आ गया, वैसे ही बहुत रूप बदलने में माहिर है रावण। पहले देखो सन्यासी का रूप लेकर के आकर के हमको उठा करके ले गया। तो सीता ट्रस्टेड एक्चुअली, हाँ, सन्यासी, बट ही वॉज he was disguising himself. Ravana disguised himself. यहाँ से भी हमको एक शिक्षा मिलती है कि अगर, हाँ, कि यहाँ पे हमारे भारत देश में साधुओं की भी बदनामी इस कारण से हुई क्योंकि साधु ने अपनी साधुता मेंटेन नहीं की। साधुओं के कपड़े पहन लेने से कोई व्यक्ति साधु नहीं हो जाता, तिलक लगाने से, कंठी माला पहनने से, सैफरन क्लॉथ पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, बल्कि उसका हृदय जो है वो साधु का होना चाहिए। क्योंकि सीता जी ने भी तो ट्रस्ट किया था रावण को, क्योंकि वो साधु के भेष में आया था। तो इस प्रकार से जो भी साधु हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो केवल बाह्य रूप से साधु ना हो, बल्कि आंतरिक रूप से भी साधु रहे, साधु बनने का प्रयास करें और साधु बने। तो यहाँ पर सीता जी को डाउट होता है कि मालूम नहीं है रावण है कौन है। तो तब जाकर के वो जब जैसे ही डाउट उत्पन्न करती है, जैसे ही डाउट एक्सप्रेस करती है हनुमान को, उसी समय हनुमान जो है को जिस हनुमान को भगवान रामचंद्र ने जो एक अंगूठी दी हुई थी, जो कि
सीता जी तुरंत देख करके पहचान जाती है, तो उससे फिर ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू होता है कि वो पहचान हाँ ये जरूर से रामदूत है, क्योंकि ये अंगूठी जो है वो राम के अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकती, जरूर से राम ने ही इसको दी है, इनको दी है, इस कारण से इनके पास में। तो जाकर के ट्रस्ट जो है वो रिवाइव होता है, और सीता जी फिर हनुमान से अच्छे से बात करना शुरू करती है। और फिर हनुमान बोलते हैं कि चलिए हे माँ सीता, चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ, आप मेरी पीठ में बैठ जाइए और मैं लेकर के आपको चलता हूँ। सीता जी को लगता है इतना छोटा साइज मंकी का और मेरे को ले जाने की बात करता है। तो सीता जी कहती है कि देखो आ, ये तो सही नहीं है कि मैं किसी दूसरे पुरुष को स्पर्श करूं, क्योंकि मैं तो एक सती स्त्री हूँ, मैं तो रामचंद्र के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकती। और दूसरा बोलते हैं कि "हे हनुमान, तुम्हारी पीठ पे मैं अगर बैठती भी हूँ और मैं चलूंगी तो बीच में सारे राक्षस जो है वो तुम पे अटैक करेंगे, तो वैसी स्थिति में कैसे संभव हो पाएगा? मैं तो तुम समुद्र के रास्ते से निकाल के ले जाओगे तो वहां से मैं गिर जाऊंगी। तो इस प्रकार से वो आर्गुमेंट्स देती है, तो हनुमान जी भी अपना साइज एकदम बड़ा कर लेते हैं और आर्गुमेंट्स को काटना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि मैं कोई पराया व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो आपके पुत्र के समान ही हूँ, तो पुत्र का स्पर्श तो माता के लिए कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा बोलते हैं कि मेरा शरीर इतना शक्तिशाली है और मेरा मेरा शरीर इतना शक्तिशाली है कि राक्षसों के इस प्रकार के प्रहार से मैं बचा करके आपको ले जा लूंगा। और बोलते हैं कि समुद्र जो है वो समुद्र तो आपके ही पिता है, तो उससे आपको क्या भय? हाँ, इस प्रकार से आप निसंदेह निसंकोच होकर के मेरी पीठ पे आ जाइए और मैं तुरंत आपको यहाँ से ले जा करके भगवान श्री राम के चरणों में आपको समर्पित कर दूंगा। फिर भी सीता जी बोलती कि नहीं नहीं, यहाँ यहाँ से बाहर, खाली मुझे बाहर निकलना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि यहाँ से बहुतों को फ्री करवाना, बहुतों को यहाँ से अ, इस रावण की लंका में जो बंधे हुए बंदिश है इनको फ्री कराने में मेरा उद्देश्य है। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि भगवान रामचंद्र स्वयं मेरी रक्षा के लिए आए। हाँ, जैसा कि मैंने विवाह में वचन दिया था कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो मैं चाहती हूँ कि भगवान रामचंद्र ही मेरे मुझे आकर के मेरे उद्धार का कारण बने। तुम केवल रामचंद्र जी के पास में हाँ मेरा ये संदेश ले जा लो। हाँ, और कुछ कुछ को साथ में कुछ निशानी दे देती है ताकि रामचंद्र जी से मिले, हनुमान जी बता सके कि हाँ इस प्रकार से मेरी सीता से भेंट हुई थी। उसके बाद फिर वहां पे सीता जी से वो बोलते हैं कि अरे मैं तो बहुत लंबे समय से कुछ खाया नहीं हूँ, तो आपकी परमेश्वर हो तो अशोक वाटिका में थोड़ा फल खा लूं। सीता जी बोलती हाँ खा लो, क्या समस्या है। और ये फल खाने तो जाते ही इतने पेड़ तोड़ते हैं कि पूरा पूरा हाहाकार मच जाता है और सब राक्षस लोग दौड़ करके इनको पकड़ने के लिए आते हैं, तो बड़ी रिक्शम रिक्शम होती है और ये सब राक्षसों को परास्त कर देते हैं। बात रावण तक पहुंच जाती है, वो अपने पुत्र को भेज देते हैं, उनके पुत्र कितने 80,000 सैनिकों के साथ में वहां पे अशोक वाटिका में जाते हैं, उन सभी को हनुमान जी अकेले ही ध्वंस कर देते हैं। बाद में जब बात ईगो पे आ जाती है तो फिर फाइनली मेघनाथ जो है वो रावण की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए स्वयं आता है। और फाइनली जब मेघनाथ का भी कोई अस्त्र काम नहीं चलता है, तो वो उसको ब्रह्मास्त्र या नागपाश से कोई अस्त्र से हनुमान जी को बांध देता है। हनुमान जी को बांधना संभव नहीं था, बट वो अस्त्र की रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे, इसलिए खुद का बंधन जो है वो स्वीकार करते। और इस प्रकार से रावण की सभा तक पहुंचते हैं। और अभी जब रावण की सभा तक पहुंच रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे लोग जो है हनुमान की खिल्ली उड़ा रहे थे। हनुमान पे कुछ लोग पत्थर भी फेंक रहे थे, पर हनुमान जो थे इन सारी चीजों से डिस्टर्ब नहीं हुए, बिल्कुल भी। क्यों डिस्टर्ब नहीं हुए? क्योंकि रामचंद्र भगवान का आदेश, रामचंद्र भगवान का एजेंडा एकदम क्लियर था। साथ ही साथ में वो लंका की बनावट को देख रहे थे, लंका नगरी किस प्रकार से बनी है, इसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं, जब हम लोग यहाँ पे अटैक करेंगे तो उस समय क्या लंका के लूप होल्स हैं, इन लूप होल्स को पकड़ करके हम लंका पे विजय प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा बिजी रहता है एज कम्पेयर टू बाकी चीजों के। तो ब्रह्मास्त्र से जबकि बंधे हुए थे, पर उसके बाद भी उस बंधी हुई अवस्था में भी लोगों के द्वारा कहे गए कुछ शब्द को नजरअंदाज करते हुए, उनकी तरफ फेंके गए पत्थरों को नजरअंदाज करते हुए अपने मिशन पे फिक्स रहना जो है, दिस इज द साइन ऑफ अ रियल सर्वेंट। तो
फाइनली जब हनुमान को रावण के सामने प्रस्तुत किया जाता है और फिर हनुमान को देख के रावण बहुत क्रोधित होते हैं, तुमने हमारे अशोक वाटिका को इतना खराब कर दिया और इतने राक्षसों को मार दिया, पुत्र को भी मार दिया, इसको प्राण दंड दिया जाए। तो विभीषण बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस प्रकार से हम के कोई दूत है, कोई इस प्रकार से आया है तो उसको हम प्राण दंड नहीं दे सकते, बल्कि कुछ दूसरा दंड दे सकते हैं। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि बंदरों को उनकी पूंछ बहुत पसंद है, पूंछ ही नाग लगा देते हैं तो इसको सबक मिल जाएगा। तो अभी हनुमान जी तो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। यही जब न्यूज जब सीता जी के पास पहुंचती है कि अरे जो हनुमान जो तुम्हारे पास आए थे उनकी पूंछी में आग लगाने वाले हैं, तो सीता जी को बहुत कष्ट होता है। तो लगता है कि अरे हनुमान ने इतनी इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जो है लंका में प्रवेश किया और मेरे लिए आया, और अभी जाकर के इसकी पूंछ में आग लगाई जा रही है। आपको मालूम है हनुमान जी से सीता जी ने कहा था कि केवल दो ही शख्सियत हैं जो कि लंका मतलब लंका तक प्रवेश करने की शक्ति रखते थे। कौन कौन? एक तो भगवान के जो वाहक हैं गरुड़। गरुड़ इस प्रकार से इतने बड़े समुद्र को पार करते हुए यहाँ तक आने की शक्ति रखते थे, है ना। और कौन रखता था? एक गरुड़, दूसरा वायु। अदरवाइज और किसी तीसरी पर्सनालिटी में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इस प्रकार से यहाँ तक प्रवेश कर पाए। अभी सीता जी का बहुत हाई कंसर्न आता है कि अरे हनुमान की पूंछ कैसे आग लगा देंगे और ऐसा वैसा। तो फिर वो सच्चे मन से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? कि अगर मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में अगर भगवान रामचंद्र के प्रति अपनी पतिव्रता व्रत का पालन किया हो तो अग्नि जो है वो ठंडी प्रतीत हो। अग्नि जो लगेगी हनुमान की पूंछ में है वो ठंडी प्रतीत हो। तो अग्नि को उसका धर्म चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि अग्नि कभी इसके पहले अपना धर्म जो है चेंज नहीं की। हनुमान जी को जब पूंछ में आग लगाते हैं तो हनुमान जी को ठंडा ठंडा प्रतीत होता है, तो लगता है क्या लगा रहे, आग लगा रहे, क्या लगा रहे, ठंडा क्यों लग रहा है। उसी समय हनुमान जी को लगता है कि हनुमान जी सोचते हैं कि जरूर से ये भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद है, या सीता जैसी सती स्त्री को मैंने थोड़े समय के लिए प्रसन्न किया था, उसका परिणाम है कि अग्नि ने ही अपना धर्म चेंज कर दिया और आज अग्नि जो है मुझे ठंडी ठंडी प्रतीत हो रही है। तो अभी हनुमान सोचते चलो इस मौके का भी फायदा उठाया जाए। तो हनुमान जी उड़ना शुरू कर देते हैं और अपनी पूंछ में लगी हुई आग से लंका लंका को जलाना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। भले चाहे हनुमान के लिए वो आग ठंडी हो, पर जो आग घरों में लग करके उनको जला रही है वो गर्म है और वो नाश करने वाली है। करेक्ट। तो इस माध्यम से उन्होंने मौके का फायदा उठाया और लंका को आग लगा दी। एक बंदर ने इतना हाहाकार मचा दिया, जाते जाते बोला हनुमान ने रावण से कि हे हनुमान, हे रावण, सोचो मैं तो एक इनसिग्निफिकेंट सा एक मतलब एक बहुत ही तुच्छ वानर हूँ राम की सेना में, और मेरे से बहुत महान महान शक्तिशाली शक्तिशाली वानर हैं। जब सबके सब यहाँ रावण लंका तुम्हारे रावण तुम्हारी लंका में प्रवेश करेंगे तो तुम सोचो क्या स्थिति होगी। एक एक हनुमान तो तुमसे संभला नहीं। प्रकार से बोल करके चले जाते हैं। देखिए कितने इंटेलिजेंटली कार्य किया हनुमान जी ने। इस प्रकार से अगर हम अपने आप को भक्त बोलते तो हमको बुद्धि का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। कैसे हम अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा कर सकें, उनके नाम का प्रचार कर सकें, उनके भक्तों की सेवा कर सकें, इसके बारे में हमको अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटली इंस्पायर्ड इंटेलिजेंस, TII, ट्रांसेंडेंटली इंस्पायर्ड इंटेलिजेंस। ये हमारे पास होना जरूरी है। तो माध्यम से हनुमान जी जो है वो वापस जाते हैं। वापस आकर के जब भगवान रामचंद्र को सीता जी के बारे में बताते हैं और जो उन्होंने एक निशानी अपनी दी थी अ, हनुमान जी के साथ में जो प्रूव करती थी कि ये सीता जी से मिले हैं, वो भी रामचंद्र भगवान को गिफ्ट करते हैं। और फाइनली भगवान रामचंद्र कहते हैं कि अभी हे हनुमान, अभी मेरे पास जो तुमने जिस जिस लेवल की न्यूज तुमने मुझे दी है, जिस प्रकार की तुमने प्रसन्नता मुझे प्रदान की है, इसको इसका आदान प्रदान करने के हिसाब से मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। तो तुरंत वो बोलते हैं ठीक है आओ मैं तुम्हें अपना आलिंगन देता हूँ। तो इस समय हनुमान जी को रामचंद्र भगवान जो है अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। ये हनुमान जी की सबसे बड़ी गिफ्ट थी।
तो ये है भगवान और भक्त के बीच में एक अच्छा आदान प्रदान। तो बहुत सारी रोचक रोचक स्टोरीज हैं रामायण में, और भी बहुत सारे पास टाइम्स हैं। और मैं सोचता हूँ कि आखिरी के 15 मिनट कुछ प्रश्न उत्तर के लिए रख लिए जाएं। और हालांकि ज्यादातर लोगों ने तो सारे के सारे पास टाइम से सुने हुए हैं, परंतु ऐसा थोड़ी है कि हमने एक बार एक बार हमने रसमलाई खाई है तो दूसरी बार नहीं खाएंगे, तीसरी बार भी खाते हैं और चौथी बार भी खाते हैं, रसमलाई हमेशा खाते हैं, है ना। या कोई भी अच्छी अल्फांसो मैंगोज है, तो हम हर गर्मी की सीजन में अच्छे अच्छे मीठे मीठे आम खाते हैं। तो इस प्रकार से रामायण के जो पास टाइम्स हैं, इनकी मिठास कभी ना कम होने वाली मिठास है। आप 1000 बार खाएंगे, उसके बाद भी 1000 बार एक भी बार भी खाएंगे, इसको इन पास टाइम को सुनेंगे तो आपको आपके हृदय में प्रसन्नता का संचार होगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड्स पास टाइम। तो यहाँ पर जाकर के हम कुछ प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। किन्हीं की कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेस कर सकते हैं पार्टिसिपेंट जाकर के। इसमें एक प्रश्न तो चैट में आ गया है कि विच बुक इज ऑथेंटिक, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण। तो ये कहेंगे कि वाल्मीकि ने सबसे ओरिजिनल जो रामायण जो लिखी थी वो वाल्मीकि ने लिखी थी। और वी डोंट से कि रामचरितमानस इज नॉन बोनाफाइड और बोनाफाइड करके, परंतु जो सबसे पहली जो रामायण थी वो इन्होंने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी, जो कि सुप्रीमली ऑथेंटिक है, नो डाउट अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम जब रामचरितमानस लोग पढ़ते हैं उसमें भी लोगों का डिवोशनल वेक्टर शूट अप होता है, और उससे भी वो लोग सरल भाषा में है ना, तो सुनने में बोलने में अच्छा लगता है। रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो है, तो इस सेंस प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन, रेज योर ओके, हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा पॉइंट शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन हो तो अच्छी बात है, तो पॉइंट्स भी शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया रामायण के ऊपर, और बहुत अच्छा लगा आपने जो लास्ट में बोला ना कि जितनी मिठास लो उतनी ही कम लगती है। प्रभु एक बात है, जैसे हनुमान जी को जब फर्स्ट टाइम राम जी मिले खोज करने में सीता माँ के, है ना, तो उनको जब उन्होंने पता किया ये मेरे प्रभु हैं तो एकदम से उनके में अंदर भक्ति उमड़ गई। और हमारे पास इतने साधन है बताने के लिए, हमारे पास ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, भागवत है, आप लोग हैं, इस्कॉन सेंटर है, सब कुछ है। फिर भी हम लोग जो भगवान से प्रेम भक्ति करना चाहते हैं ना, वो प्रेम भक्ति होती नहीं है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम पूजा भी करते हैं, तो ये लगता है कि बस हाँ ये हमें बता दिया है और हमारी ड्यूटी है, हमने अपनी पूरी कर ली है। मगर जो असली प्रेम है, क्योंकि कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं भगवान से कोई भी चीज कर रही हूँ ना, तो वो सब ऊपर से ही चल रहा है, अंदर से कुछ आते ही नहीं है। वो प्रेम भक्ति कैसे बढ़ाई जाए प्रभु? जिस तरीके से हनुमान जी तो केवल नाम के सहारे ही लिख गए, क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में दे रखी है, उस नाम के प्रति ही रुचि नहीं आती कई बार। हरे कृष्णा हाँ प्रभु। हाँ, सही है ये पॉइंट। देखिए इसलिए हम बताते हैं कि 9 स्टेजेस रहती है ना। अदो श्रद्धा, एक बेसिक फेथ के साथ हम अप्रोच करते हैं। फिर साधु संग, साधुओं के साथ में संग करते हैं, डिवोटीज एसोसिएशन करते हैं। तो फिर साधु हमको भगवान की भजन क्रिया में संलग्न करते हैं। भजन क्रिया क्या है? रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, डीटी वर्शिप, ये भजन क्रिया होगी। जैसे जैसे हम भजन क्रिया अच्छी स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इससे होती है हमारी अनर्थों की निवृत्ति। अनर्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, की होती है निवृत्ति। जब अनर्थों की निवृत्ति होती है तो उस मात्रा में निष्ठा के स्तर पे फेथ हमारे अंदर आता है। ऐसा फेथ जो कोई हिला नहीं सकता, जैसे प्रहलाद महाराज के अंदर था। निष्ठा के फेथ, निष्ठा के बाद जो स्टेज आती है वो होती है रुचि। हमारी जो है रुचि ही डेवलप हो जाती है। जैसे किसी बच्चे की खेलने के प्रति रुचि रहती है, या किसी नवयुवक की नवयुवती को इम्प्रेस करने की रुचि रहती है, तो रुचि है। उसके बाद फिर आता है आसक्ति का प्लेटफॉर्म। जैसे आपने किसी नए बछड़े को गाय का दूध पीते हुए देखा होगा, आप उसका कान खींच करके भी हटाने का प्रयास करेंगे तो बछड़ा जो है वो गाय का थन नहीं छोड़ेगा। ये बोलते हैं आसक्ति। उससे तो होती है आसक्ति की। उसके बाद फिर आता है भाव का इस प्लेटफॉर्म, जो कि बहुत ही ऊंचा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद फिर फाइनली आता है प्रेम का स्तर। अभी क्या है कि हम चाहते तो है प्रेम, परंतु अभी हमारी अनर्थ निवृत्ति सही से नहीं हुई है। पहले तो अनर्थों की निवृत्ति होनी पड़ेगी, तो जाकर के हम निष्ठा के स्तर पे हमारा विश्वास पहुंचेगा। करेक्ट। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल भजन क्रिया जब तक
प्रॉपरली नहीं होगी जब तक अनर्थों की निवृत्ति भी सही से नहीं होगी। तो इसलिए अभी हमारा इमीडिएट टारगेट जो रहता है एक साधक का, वो होता है अनर्थ निवृत्ति। इन्हीं अनर्थों के कारण से हम खुद भी परेशान हैं और हम दूसरों को भी परेशान करते हैं। बोले हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्या है, पर वो दूसरों के जीवन में समस्या उत्पन्न करने में बाज नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी अनर्थ है और दूसरों के अंदर भी अनर्थ है। इसीलिए ये भाव प्रेम तो बहुत ऊंचे स्तर है। हमको प्रयास करना चाहिए कैसे हमारे अनर्थों से निवृत्त हो और निष्ठा के स्तर तक आए। धीरे धीरे भगवान खुद ही हमको वो रियलाइजेशन और अनुभूतियां देंगे, जिनके माध्यम से हम फिर भी भगवान को नहीं छोड़ने का दृढ़ निश्चयता लेंगे और भक्ति में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। साधु संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साधु की हमको जो है वो भजन क्रिया में एंगेज करते हैं। भजन क्रिया में हम सिंसियरली एंगेज होके अनर्थ निवृत्ति होती है। So it goes like that. Thank you माता जी for asking question. अनुजा माता जी ने हैंड रेस किया है। कृष्ण प्रभु जी अभी जैसे आपने वाल्मीकि रामायण से ले रहे थे आप, मतलब तो उसमें सीता जी बोल रही हैं कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो मैं बैठ नहीं सकती और मैं जा नहीं सकती, है ना। और तुलसी मानस में बोलते हैं हनुमान जी सीता जी से बोलते हैं कि मैं तुमको ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ले गया तो मतलब नारद और ये सब लोग भगवान राम का जस कैसे गाएंगे। ये तो, मतलब है ऐसी चौपाई, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, हिंदी याद है मुझे। तो इसमें सही क्या है फिर? ना क्योंकि दोनों चीजें सही हैं। ना दोनों चीजें ये जो चीज है तो पहली बार ही सुना है कि हनुमान जी इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ले जा तो मैं सकता हूँ, परंतु नारद वगैरह क्या बोले। नहीं आप देखिए प्रभु, नहीं प्रभु लिखा हुआ है तुलसी रामायण में, मुझे याद है काफी। एक बार पहले मैं पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद फिर कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं सुना ही पहली बार हूँ, तो मैं टिप्पणी कैसे करूंगा इस पे। नहीं मुझे याद है, इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ ना, इसमें पर एक चीज और बताऊंगा। आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में जाएंगे तो बहुत सारे आपको रामायण के वर्जन मिलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पास टाइम्स भी हमको सुनने मिलते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं है। करेक्ट। तो इससे कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि किसी ने मन से बना करके छोड़ दिया कि बाकी नहीं मैं आपको अभी भेजती हूँ। अच्छा है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो आप बोल रही है वो गलत बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि साउथ इंडिया में बहुत सारे रामायण है, और बहुत सारे आपको अलग अलग पास टाइम्स मिलेंगे। तो हमको कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि कोई पास टाइम हमको कोई दूसरा व्यक्ति भी बता रहा है तो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। तो इन सब कंफ्यूजन से बचने के लिए एटलीस्ट एक कांस्टेंट या बेसिक है कि वाल्मीकि रामायण तो सभी लोग बोलेंगे कि ऑथेंटिक है, उसको तो कोई बोल ही नहीं सकता कि ऑथेंटिक नहीं है करके। तो एटलीस्ट ये एक बेस हमारा क्लियर हो गया। इसके अलावा फिर अगर हमको और प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्सेज से नॉलेज मिलता है तो अच्छी बात है। एटलीस्ट बेसिक गाइडलाइंस हमारी क्लियर है इसमें से। जी थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और उमेश जी आपने हैंड रेस किया है। उमेश जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी हनुमान जी को जैसे भगवान राम आए, मनुष्य के रूप में आए थे, तो उनको मतलब ये पूरा अनुभव हो गया कि भगवान हैं, अब मुझे उनके लिए ही सेवा करना है। लेकिन प्रभु जी इस कलयुग में हम देखते हैं कि हमारे साधु संत वैष्णव बताते हैं कि आप संस्था में आके भक्ति करिए, कृष्ण का करिए, राम का करिए, लेकिन प्रभु जी ट्रस्ट और ये भाव नहीं आता है प्रभु जी कि हम इसको मान ही ले, ये ही सही है। तो उसको हम कैसे समझ पाएंगे, थोड़ा क्लियर करिए। तो वही मैंने कहा ना कि पहले तो हमको खुद की इंटरनल क्लैरिटी भी डेवलप करनी चाहिए। अगर हमको ये क्या होता है कि एक होता है प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, एक होता है शास्त्रिक इंजंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एकादशी हमको पालन करना चाहिए, ये शास्त्रिक इंजंक्शन है। अब जैसे किसी ने हमको बोला कि एकादशी आपको निर्जला पालन करना है, ठीक है, तो ये भी शास्त्रिक है, परंतु इसमें फिर भी वेरिएशंस है। मतलब कोई निर्जला कर सकता है, कोई सजला कर सकता है, कोई सफला कर सकता है, कोई फराहारी एक बार ले सकता है। ये डिटेल्स है बेसिकली। तो जब हम किसी साधु से डील करते हैं, अब हमको प्रैक्टिकल डिटेल्स के बारे में जब हम हमारे साथ शेयरिंग करते हैं, तो उसमें कई बार हम क्लियर ही नहीं रहता बेसिकली सामने वाला जो बोल रहा है वो हमको करना चाहिए कि नहीं चाहिए, या उसको करने से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो ये सब होता है, ये इस सब के बारे में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है।
काउंसलर है या कोई शिक्षक गुरु है जो हमको बता रहे हैं कुछ, तो जरूरी है कि हम उनसे क्लियर करते हुए आगे चलें। नहीं तो अगर हमें स्पष्टता ही नहीं है तो फिर सरेंडर तो हो ही नहीं सकता। आपके अपनी आंखों का ऑपरेशन कोई नव सीखिए और डॉक्टर से करवा सकते हो, कभी नहीं करवाओगे, करेक्ट? तो इन दैट वे द फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सरेंडर, ये देख सकते हैं। ओके, श्याम सखा प्रभु और उसके बाद फिर दयानंद प्रभु। पहले श्याम सखा प्रभु आप पूछ लीजिए, फिर दयानंद प्रभु आप पूछ हरे कृष्ण प्रभु दत्तनाथ। लीजिए। हाँ, प्रभु जी एक माता जी पूछ रहे थे ना, वो जो रामचरितमानस का कुछ बता रहे थे और वाल्मीकि रामायण का कुछ बता रहे थे। तो मैंने ऐसे कहीं सुना है कि माता सीता जब वो लवकुश को जन्म देने के पूर्व वाल्मीकि जी के आश्रम में रहे थे, तो वाल्मीकि रामायण मतलब ज्यादा, जैसे श्रीमद् भागवतम में संस्कृत में पूरा बना है, ऐसे वाल्मीकि रामायण संस्कृत का एक ज्यादा ऑथेंटिक है, और रामचरितमानस भी उतना ही मतलब है, पर वो अवधी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है। तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इसके कारण वो आज जैसा आपने बताया है। और मेरा प्रश्न ये था कि जो हनुमान जी का श्री राम के प्रति जो निष्ठा थी, मतलब जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मामेकम शरणम व्रज, वो वास्तव में हनुमान जी ने रामायण में सिद्ध करके दिखाया है। तो ऐसी निष्ठा हम भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति किस प्रकार स्थापित करें? हाँ, जैसा प्रश्न है कि कैसे हमारी निष्ठा आगे बढ़े। निष्ठावान भक्तों के संपर्क में, सानिध्य में रहना चाहिए, निष्ठावान भक्तों की सेवा करना चाहिए। भक्तों के माध्यम से हमको जो है वो भक्ति मिलती है। और जब तक हम उचित प्राइस नहीं पे करेंगे, जब तक हमको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो अगर हमको कलेक्टर बनना है तो उसके लिए फिर हमको आईएएस का एग्जामिनेशन भी निकालना ही पड़ेगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि आईएएस का एग्जामिनेशन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, और अच्छे जो पढ़ाई करते हैं आईएएस की उनका संग करना पड़ेगा, उनसे हमारा सॉलिड डिटर्मिनेशन बना रहेगा। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, दयानंद प्रभु आप पूछिए, फिर प्रशांत बंसल प्रभु प्रश्न। तो अपना माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा, आप बोल तो रहे हैं परंतु मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ प्रभु जी, वो मैं सुंदर कांड पढ़ा हूँ रामचरितमानस का, जो अनुजा माता बोल रही है कि राम जी, हनुमान जी और उनका जो संवाद हुआ है सीता माता का, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मैं कई बार सुंदरकांड पढ़ा है। वो हनुमान जी ले जाने की बात तो करते हैं, लेकिन माता जी इनकार कर देती हैं कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं सती हूँ, पतिव्रता स्त्री हूँ, और दूसरे पुरुष का आसपास हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वही कहा कि अलग अलग कंफ्यूजन कई बार होते हैं इस प्रकार से। तो वाल्मीकि रामायण को क्या माता जी, सुंदरकांड पढ़ लीजिएगा एक बार, सुंदरकांड भी एक चीज है। ठीक है, मैं उसमें बाद विवाद में नहीं पढ़ूंगा, समय वैसे कम है। प्रशांत प्रभु कोई प्रश्न आपका हो तो पूछ सकते हैं। प्रशांत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रश्न ये है, जैसे ये बोलते हैं भगवान आते हैं तो ज्यादातर वो जो उनके पार्षद और जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा में आते हैं। तो हनुमान जी महाराज जो हैं वो क्या, वो भी कोई ऐसी पार्षद या भक्त पहले से हैं भगवान की? हाँ, शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार है ना हनुमान जी। 11वें रुद्र अवतार जो है शिव जी के कौन है? हनुमान जी हैं, जो कि नित्य पार्षद हैं भगवान रामचंद्र के। तो हमारा शास्त्रिक वर्णन वर्णन है इसका ऐसा। हरे कृष्ण। ओके, शिल्पी माता जी हैंड रेस किया है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप बोल रही हैं पर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। रावण ने सीता का हरण क्यों किया था? रावण जो था वो सीता को अपनी पटरानी बनना चाहता था, सीता की सुंदरता से काफी मोहित था, इस कारण से उसका हरण कर लिया था। क्योंकि सीता का हरण नहीं करता, सीता तो वैसे मानती नहीं, बाद में भी नहीं मानी थी हरण करने के बाद भी। पर रावण को एक उम्मीद थी कि अगर हम इनको राम से दूर कर देंगे और अपने अशोक वाटिका में लाकर ले आएंगे और इस माध्यम से उनके साथ किसी एक ना एक दिन विवाह कर पाएंगे। पर वो नहीं जानता था कि सीता जी तो कभी भी किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती या नहीं सोच सकती। ठीक है, तो आई थिंक हम समय पे ही चल रहे हैं।
9 बजे तक का समय हमको दिया गया था। 8:59 पे हमने सारे प्रश्न उत्तर ले लिए हैं। पंक्चुअलिटी। प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि अच्छा। हनुमान जी जो थे वो एक बहुत ही अच्छे साधक थे, तो साधकों वाली क्वालिटीज आप बता दीजिए जो एक अच्छे साधक में होती है। रावण जी के अंदर लगभग लगभग सभी कुछ आपको मिल जाएगा। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ग्रेटिट्यूड, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ऑस्टेरिटी, प्यूरिटी, इलनेस, सारी जितनी क्वालिटीज आपको चाहिए वो सभी का सब हनुमान जी के अंदर मिल जाएंगी। 1 पर्सन मल्टीपल क्वालिटीज। आपको और ये प्रश्न हाँ जी। और स्टार्टिंग में एक साधक को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका मन तो बड़ा ही सबसे इम्पोर्टेंट विचलित तो होता रहता है। डिसिप्लिन है। सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है। बोलते हैं ना कि द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ रिग्रेट और लेमेंटेशन। इसलिए डिसिप्लिन की जो प्राइस रहती है बहुत कम रहती है। जो बाद में डिसिप्लिन ना हो पाने की वजह से जो लेमेंटेशन होता है, रिग्रेट होता है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे शुरुआत में जो प्राइस क्वालिटी होनी चाहिए वो डिसिप्लिन की होनी चाहिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, 9 बजे शार्प हम अपने आज का सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं। आप लोग इसी रामायण की बाकी सीरीज में भी बने रहिएगा। उत्साहपूर्वक आप सभी का इस सेशन को अटेंड करने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, भगवान श्री रामचंद्र की जय। भक्त हनुमान की, निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर रूप से मैं जानता हूँ कि आपने वर्णित की होगी हर एक हनुमान जी की क्वालिटीज को, उनके गुणों को। अब भाग्यवश मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाया, बट शुरू करने के लिए और अंत करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर उपस्थित हूँ। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, हृदय से आपका भी धन्यवाद। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और हम सभी को रामायण के पन्नों में ले जाकर हनुमान जी की दिव्य लीलाओं और साथ में दिव्य गुणों का एक बहुत अद्भुत रूप से समझाया। और मैं जानता हूँ कि हमारे सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से मेलोडियसली आपने बताया होगा, अपने स्माइलिंग फेस को कैरी करते हुए, जैसा मैं सबको स्टार्ट में बोला था। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस टुडेज सेशन। So much for inviting me. Hare Krishna. Yes, Prabhuji mentioned 1.1% many qualities for Hanuman ji. Similarly, Prabhuji is having 1%. Prabhuji is 1% and having many qualities. So meet him. You can visit ISKCON Ujjain. You can meet him personally. Then you will get to know about him. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna.